Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. Let's start chapter number 4, Excel 2016 Advanced Features. Let's move on to introduction. In Excel, sorting and filtering are essential data management tools. Excel में ये जो sorting और filtering है ये काफ़ी ज़्यादा important data management tools हैं. Sorting organizes data in a specified order. So sorting से क्या होता है, जो भी data है वो हमारा एक particular order में organize हो जाता है, either ascending or descending. या तो हम ascending में कर सकते हैं या फिर descending में कर सकते हैं, based on selected criteria. जो भी criteria है उसके according, such as numbers, text and dates. जिसमें एक आपके numbers आ सकते हैं, text आ सकते हैं या फिर dates आ सकते हैं. This allows users to arrange information systematically for better analysis. और इसकी मदद से जो भी हमारी information है वो एक systematic ढंग से जो है arrange की जा सकती है. Filtering on the other hand enables users to display only specific data. लेकिन अगर हम filter कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो specific data है सिर्फ वही filter हो रहा है यहाँ पे. Subsets according to defined condition, जो भी condition उसके according, making it easier to focus on relevant information within large data sets. So ये जो information जो भी available है उनको हम filter कर सकते हैं filtering की मदद से. Let's move on to the learning objectives. After learning this chapter, students will be able to know. इस chapter को पढ़ने के बाद आप सब क्या समझ जाएंगे, क्या चीज़ें सीख जाएंगे. You will understand the concept of sorting. Sorting क्या होता है? Understand filtering and conditional formatting features. आप जब filtering के बारे में समझ जाएंगे, conditional formatting जो होता है वो क्या होता है ये समझ जाएंगे. Now you will understand what data validation is. आप ये भी समझ सकते हैं कि data validation क्या होता है. And you will also learn the concept of goal seek. Goal seek क्या है तो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे and इस चैप्टर के एंड तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे. Now let's move on to the conversation between Meera and Hina. Meera says, "Hi Hina, I am doing a project in Excel where I need to apply some advanced formatting features." So मीरा ने हीना से कहा कि मैं एक एक्सेल में प्रोजेक्ट करें जिसमें मुझे कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई करने हैं. Now हीना says, I see, can you give me an idea what features you would need in your project? So हीना ने कहा कि अच्छा तुम मुझे क्या ये आइडिया दे सकते हो तुम्हें क्या क्या फीचर्स सीखने हैं अपने प्रोजेक्ट में डालने हैं. मीरा says, yes Hina, I need to arrange my data in some order and I need to display some specific data from my records. तो हाँ मुझे जो है कुछ डेटा को अरेंज करना है और कुछ डेटा को जो है अपने रिकॉर्ड्स में एक स्पेसिफिक तरीके से रखना है. Now Hina is saying, okay Meera, got it. You need to do sorting and filtering. Means तुम्हें sorting और filtering दोनों काम करने हैं. Now Meera says, I have got the data here. ये है मेरा डेटा. Could you please help me out doing these tasks? क्या तुम जो है मेरी मदद कर सकती हो इस काम को करने में? Hina says, yes Meera, I'm glad to assist you. मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हें हेल्प करने का मौका मिल रहा है. So let's get started. तो चलो देखते हैं कैसे हम ये कर सकते हैं. So Excel क्या है, ये एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है which is used to work with numbers, text and formula. जहाँ पे हम numbers को, text को और formula को use करते हैं. Excel is not only used for organizing data and analysis. इसे हम सिर्फ डेटा या फिर एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते हैं but also for creating visual representations like charts and graphs. यहाँ पे हम charts और graphs को भी जो है यूज करते हैं to better understand the present data. जो भी डेटा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए. It is a versatile tool for generating reports and making decisions. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक जो है टूल है जिसमें हम रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं. Now let us perform some advanced features of Excel. तो चलिए देखते हैं कुछ एडवांस फीचर जो है Excel के उसके बारे में पढ़ेंगे. तो पहला फीचर जो आता है वो है sorting.
सो इन एक्सेल डेटा इज सॉर्टेड इन रोज एंड कॉलम्स। एक्सेल में जो डेटा है उसे रोज और कॉलम्स में सॉर्ट किया जाता है, बट इट इज सॉर्टेड इन सेम सीक्वेंस एज वी एंटर। लेकिन जैसा हम इसे एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसी सीक्वेंस में ये सॉर्ट होता है। टू अरेंज डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर आपको ये जो डेटा है इसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना है, वी यूज सॉर्टिंग, हम सॉर्टिंग का यूज करते हैं। तो सॉर्टिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है अरेंजिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें जो है हम डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, चाहे तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। सॉर्टिंग हेल्प्स मेक योर डेटा मोर ऑर्गेनाइज। सॉर्टिंग क्या करता है? आपके डेटा को और ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाता है और काफी ज्यादा आसान बनाता है एनालाइज करने में। कैसे? उन्हें जब हम अरेंज करते हैं एक पर्टिकुलर मीनिंगफुल ऑर्डर में। There are two types in which we can sort the data. दो तरीके हैं, दो टाइप्स हैं जिसमें हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। पहला है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये जो असेंडिंग ऑर्डर है इसमें हम क्या करते हैं? डेटा को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि अरेंजिंग लेटर्स फ्रॉम ए टू जी। ए से जी तक के जो भी लेटर्स है उन्हें अरेंज करना, नंबर्स को अरेंज करना लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ या फिर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? इसे हम यूज करते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं लेटर्स को Z से A की तरफ, नंबर्स को हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, लेट्स अज्यूम वी हैव अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय डेटा। तो हमें अज्यूम करना है कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय डेटा दिया गया है with columns for employee name, department, age and salary. So ये सारे कॉलम्स है, आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, एज एंड सैलरी। सो ये एक डेटा है हमारे सामने। अब हमें क्या करना है? इसे जो है सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट मेथड दिया है कैसे हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू सेलेक्ट द एंटायर रेंज ऑफ सेल्स। जो भी रेंज ऑफ सेल्स है उन्हें हमें पहले सिलेक्ट करना है। सपोज वी वांट टू सॉर्ट एम्प्लॉय नेम, मान लेते कि हमें एम्प्लॉय नेम को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। सो वी विल सेलेक्ट द रेंज A to 9। सो यहाँ पे हमने A2 से A9 तक के जो भी सेल्स थे उन्हें सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जाना है होम टैब पे। यहाँ पे अब हमें मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। ये रहा हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन जो कि हमारे एडिटिंग ग्रुप में होता है। फिर हमें सॉर्ट करना है A to Z, मीन्स ये ऊपर नीचे है, A यहाँ पे भी है, A लास्ट में भी है, तो इन्हें हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में डालना है। तो हमने A to Z को सिलेक्ट किया यहाँ से, एंड जो एम्प्लॉय के नेम है अब वो जो है जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा? वो सारे नेम अल्फाबेटिकली हमें लिखे हुए दिखने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अमन के बाद दिनेश आ रहा था और यहाँ पे अमन के अजय पहले आ रहा है और फिर अमन आ रहा है, और ये सारे नाम अब जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं ना। अब दूसरा मेथड दिया गया है डेटा को सॉर्ट करने का। सो क्या है ये हमारा दूसरा मेथड? इसमें हमें क्या करना है? We have to select the full table range including headers. हमें जो पूरा टेबल रेंज है वो सबको जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ पे इसमें हेडर्स को भी हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने क्या किया है? अरेंज की है सैलरी इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सारे जितने भी एम्प्लॉयज इनकी सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सेलेक्ट किया है। तो हमने क्या सेलेक्ट किया? हमने सेलेक्ट किया है सेल D2 से D9 तक। तो ये है हमारा D2, ये है हमारा D9, इन सबको सेलेक्ट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है? हमें जाना है डेटा टैब पे। सो अब हम गए डेटा टैब पे, ये है हमारा डेटा टैब। नाउ क्लिक ऑन सॉर्ट Z to A। सो अब हमें Z to A पे जाना है फ्रॉम फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हमें Z से A को सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा। सो अब हमने जो है क्या किया? इन सबको सेलेक्ट किया जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब इससे क्या होगा? जो भी हमारी सैलरी है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके सामने आ चुकी है। तो 60,000 जो है सबसे हाईएस्ट सैलरी है और 34,000 जो है सबसे लोएस्ट सैलरी है।
सो ये था सॉर्टिंग. नाउ लेट्स लर्न अबाउट कस्टम सॉर्टिंग. कस्टम सॉर्टिंग क्या होता है? कस्टम सॉर्टिंग लेट्स अस टू सॉर्ट द डेटा बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स. हम अपने प्रेफरेंसेस या फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें सॉर्ट कर सकते हैं. टू सॉर्ट द ऑर्डर बेस्ड ऑन precedence, Excel provides the option to create a custom list. So इन्हें सॉर्ट करने के लिए Excel क्या करता है? एक कस्टम लिस्ट प्रोवाइड करता है for the preferred sorting order. ये जो भी सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए उसके लिए. You can define your own custom order. हम अपना खुद का एक ऑर्डर बना सकते हैं कस्टम सॉर्टिंग ऑप्शन को यूज करके, जैसे सॉर्टिंग बाय डिपार्टमेंट नेम्स ऑन प्रायोरिटी लेवल्स. तो हम जो डिपार्टमेंट नेम है उन्हें हम सॉर्ट कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग? प्रायोरिटी लेवल्स के अकॉर्डिंग. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स फॉर कस्टम सॉर्टिंग. कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है हमें क्या करना है? रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके भी डेटा को हमें सॉर्ट करना है. इंक्लूड क्या करना है? हेडर्स को भी, जो हेडिंग है उन्हें भी इंक्लूड करना है. फिर हमें जाना है डेटा टैब में. ये हमारा डेटा टैब है, यहाँ पे आएंगे. नाउ अब हमें क्या करना है? क्लिक करना है सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे. ये है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन जो कि आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में मिलेगा. फिर सॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा? जो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स है ये जो आपके सामने, ये आपके सामने आ जाएगा. बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट कॉलम इज सेलेक्टेड इन सॉर्ट बाय लेवल. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये जो भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको सॉर्ट बाय लेवल ऑप्शन जो है मिलेगा. We can change it by clicking on drop down arrow. So drop down arrow पे हम क्लिक करके हम इसे चेंज कर सकते हैं. तो इसे हम चेक करेंगे और जो है हम इसमें चूज करेंगे सॉर्ट बाय ऑप्शन को. सो अब हमने यहाँ पे सॉर्ट बाय ऑप्शन को चूज कर लिया है. नेक्स्ट वी हैव टू क्लिक ऑन एड लेवल बटन. अब इसके बाद हम एड लेवल बटन को चूज करेंगे टू सॉर्ट अनदर फील्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर. अब हमें दूसरा फील्ड जो है यहाँ पे चूज करना है, तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम उसे लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सॉर्ट एम्प्लॉय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें जो एम्प्लॉय नेम है उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. एंड सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और सैलरी जो है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. देन क्लिक ऑन सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉलम. अब हमें एम्प्लॉय नेम कॉलम पे जाना है और सेलेक्ट करना है A to Z ऑप्शन को. कहाँ से? उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से. और सॉर्ट करना है सैलरी कॉलम को इन डिसेंडिंग ऑर्डर में. सेलेक्ट एड लेवल बटन एंड सेलेक्ट सैलरी. सो एड लेवल बटन को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और सैलरी को सिलेक्ट कर लेनी है. और सेलेक्ट करना है यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑप्शन को, जो कि हमारे ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमें दिख रहा है. तो ये सारे चेंजेस हमने किए. अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ओके बटन पे क्लिक करेंगे. ये है आपके सामने. सो हम देख सकते हैं कि जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट चाहिए था वो सारा रिजल्ट हमारे सामने है जैसा हमें चाहिए था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज हाउ इज सॉर्टिंग हेल्पफुल. सॉर्टिंग कैसे हेल्पफुल है? सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर एंड देन यू हैव टू राइट इट हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फिल्टरिंग डेटा. तो अभी हमने सॉर्टिंग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी फिल्टर डेटा. सो फिल्टरिंग डेटा इज यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली दैट डेटा दैट मैचेस द सिलेक्टेड क्राइटेरिया. सो फिल्टर करने का मतलब है हम उस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जो कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में है, उसी डेटा को बस फिल्टर किया जाता है यहाँ पे. द अदर रोज गेट हिडन टेम्पररी. जो दूसरे रोज हैं उस रिलेटेड डेटा से वो सारे छुप जाते हैं, हिडन हो जाते हैं. You can filter rows in Excel worksheets by values. हम क्या कर सकते हैं? जो भी रोज हैं उन्हें फिल्टर कर सकते हैं एक्सेल वर्कशीट में वैल्यू के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. It helps in pursuing only on relevant data for analysis. ये हेल्प करता है हमें परस्यू करने में जो भी relevant data है एनालिसिस के लिए. Now let's move on to the steps to filter data. कैसे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है रेंज ऑफ सेल्स जिसे हमें फिल्टर करना है. नाउ क्लिक करना है हमें डेटा टैब पे. फिर वहाँ से हमें जाना है, क्लिक करना है फिल्टर ऑप्शन पे और जो कि हमें मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में.
अब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी जिसमें से हमें जो भी हेडिंग चाहिए वो हम यहाँ से चूज करेंगे। नाउ क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे जो कि हमारे सामने आ जाएगा ऑन द कॉलम हेडिंग पे। फिर क्या करना है, चेक करना है कोई भी वैल्यू दैट यू वांट टू डिस्प्ले। सो जो भी वैल्यू हमें चाहिए उसे हम चेक कर लेंगे जो हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सी रिकॉर्ड ओनली फॉर कंप्यूटर्स एंड मैकेनिकल, सो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं, इसमें से हमें सिर्फ कंप्यूटर और मैकेनिकल चाहिए तो हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में टिक लग रहा है, इन दोनों को हमने चूज कर दिया। तो क्या होगा, ये जो डेटा है उसके सामने जो चेक बॉक्स है उसमें हमें टिक करना होगा। फिर हमें क्या करना है, ये जो ओके बटन है इस पर क्लिक करना होगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे सामने सिर्फ ये जो 2 फील्ड हमने चूज किया है इनका ही डेटा हमारे सामने आ जाएगा। सो दिस इज फिल्टरिंग। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर और मैकेनिकल के जो भी डेटा है वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये था हमारा फिल्टरिंग डेटा। नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमें अलाउ करता है ऑटोमेटिकली अप्लाई करने में फॉर्मेटिंग को सेल्स में बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस और क्राइटेरिया। तो जैसा कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चेंज करना है अपीयरेंस हमारे सेल का दैट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन, जो उस कंडीशन को मीट कर रहा है, such as we can display marks of students who scored less than 40 in yellow color। तो हमें क्या करना है, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं जिनके मार्क्स 40 से कम हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं इन्हें हमें फॉलो करना होगा। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स ऑन विच यू वांट टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले उन रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करें जिसमें हमें फॉर्मेटिंग लगानी है। फिर हमें होम टैब पे जाना है, फिर सेलेक्ट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो कि हमें मिलेगा स्टाइल्स ग्रुप में। फिर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है हाईलाइटेड सेल रूल्स को जो कि हमें उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलेगा। फिर हमें सेलेक्ट करना है बिटवीन जो कि हमें सब मेन्यू में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। नाउ इन द अपीयर डायलॉग बॉक्स, अब जो भी डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने, टाइप द वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो हमें यहाँ पर टाइप करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज हु रिसीव्ड सैलरी बिटवीन 45,000 to 60,000, तो हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए उन एम्प्लॉयज का जिनकी सैलरी 45 से 60,000 के बीच में थी। तो हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे 45,000 फर्स्ट बॉक्स में एंड 60,000 दूसरे बॉक्स में। अब हमें क्या करना है, चूज करना है फॉर्मेटिंग स्टाइल को, जैसे कि ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन हमने चूज किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज ऐड कर दी, यहाँ पे ऐड कर दिया और फिर हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। सो जैसे हमने क्लिक किया तो क्या हुआ, The records will be highlighted with the specified condition। जो रिकॉर्ड है वो अब हमारे सामने आप देख सकते हैं हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट इज डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सेल कैपेबिलिटीज। डेटा वैलिडेशन क्या है, ये बहुत ही पावरफुल एक्सेल कैपेबिलिटी है। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है द टाइप ऑफ डेटा और द वैल्यूज दैट यूजर एंटर इनटू अ सेल। ये क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है किस तरीके का डेटा जो है पर्सन जो है डालता है किसी भी सेल में। इट कंट्रोल्स द टाइप ऑफ डेटा और वैल्यूज यूजर एंटर इन द सेल। ये कंट्रोल करता है किस तरीके का डेटा और वैल्यू जो है यूजर सेल्स में डाल रहा है। नाउ हाउ टू यूज डेटा वैलिडेशन, कैसे हम डेटा वैलिडेशन को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है सेल्स जिसमें हमें ये अप्लाई करना है। नाउ अब हमें जाना है डेटा टैब पे, वहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे जो कि आपको डेटा टूल्स ग्रुप में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन खुल गया है। द डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब हमें कहाँ जाना है, वी हैव टू गो ऑन द सेटिंग्स टैब। यहाँ पे आपको सेटिंग्स टैब दिख रहा है, इसमें जाना है अंडर अलाउ जो कि अलाउ के अंदर है एंड सेलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ, कस्टम। सो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये सब होल नंबर ये क्या करता है, सिर्फ होल नंबर्स को अलाउ करता है। डेसिमल क्या करता है, डेसिमल नंबर्स को अलाउ करता है। लिस्ट क्या करता है, ये अलाउ करता है डेटा सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट से। डेट क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है सेल को एक्सेप्ट करने में किसी भी डेट को। टाइम क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है सेल को एक्सेप्ट करने में किसी भी टाइम को। टेक्स्ट लेंथ क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है जो भी लेंथ है हमारे टेक्स्ट का उसको। और फिर आता है कस्टम, ये क्या करता है, ये एक कस्टम फॉर्मूला है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ अलाउ कॉलम के अंदर। अब जो है अंडर डेटा, अब जब हम डेटा के अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है, वी हैव टू सेलेक्ट द कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे दिया है बिटवीन, तो आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नाउ सेट द अदर रिक्वायर्ड वैल्यूज बेस्ड ऑन व्हाट यू चूज फॉर अलाउ एंड डेटा। सो जो भी चीजें हमने यहाँ पे अलाउ और डेटा में चूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमें मिनिमम, मैक्सिमम इन सबको चूज करना है। नाउ सेलेक्ट द इनपुट मैसेज टैब। अब हमें इनपुट मैसेज टैब को सेलेक्ट करना है एंड कस्टम अ मैसेज। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैसेज है उसे कस्टम करना है। दैट विल बी विजिबल टू यूजर्स व्हाइल एंटरिंग डेटा। तो जैसे ही इन सब के अलावा कोई और डेटा यहाँ पे एंटर होता है तो जो हमारा यूजर है उसे वो डेटा जो है क्या करेगा, एक तरीके की वार्निंग देगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट द शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, चेकबॉक्स टू डिस्प्ले द मैसेज। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो सके। When the user selects or hovers over the selected cells, तो जब जो यूजर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा या फिर उस सेलेक्टेड सेल के ऊपर होवर करेगा अपने माउस को, तो ये मैसेज हमारे सामने आएगा। फिर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है एरर अलर्ट टैब को एंड कस्टमाइज करना है एरर मैसेज को, जो कि एंड चूज अ स्टाइल, और फिर जो भी स्टाइल है वो हमें चूज कर लेना है एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके बटन पे क्लिक कर देना है। Now if the user tries to enter a value, अब जो है क्या होगा, अगर जो यूजर है वो वैल्यू को एंटर करेगा, that is not valid, an error alert appears। तो एक एरर अपीयर होगा हमारे सामने, जिसका मतलब है, जिसका जो क्या लिखा हुआ होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा that is not valid with the customized message, जिसमें एक customized message होगा। For example दिया है, if you want to restrict that user can enter values between 10 to 20। So हम जो है यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहे हैं 10 से 20 के बीच में, जो कि F6 में है, F6 सेल में है। तो हमें ये जो स्टेप्स दिए गए ये फॉलो करना होगा। पहला है क्लिक ऑन सेल F6 पे हमें क्लिक करना है, फिर डेटा टैब में जाना है, फिर सेलेक्ट करना है डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को, जो कि डेटा टूल्स ग्रुप में मिलेगा हमें। फिर सेलेक्ट करना है होल नंबर को फ्रॉम अलाउ ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर हमें सेलेक्ट करना है बिटवीन को डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एंड एंटर करना है 10 को मिनिमम में, 20 को मैक्सिमम बॉक्सेस में। आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ क्या करना है, अब हमें स्पेसिफाई करना है टाइटल और इनपुट मैसेज। कहाँ पे, इनपुट मैसेज टैब में जाके। तो ये सारी चीजें हमने कर दी, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने कर दी। फिर क्या होगा, स्पेसिफाई स्टाइल। अब हमें स्टाइल को स्पेसिफाई करना है, टाइटल को स्पेसिफाई करना है और एरर मैसेज को स्पेसिफाई करना है एरर अलर्ट टैब में जाके। तो ये हमारा एरर अलर्ट टैब है, इसमें हमने जाके ये सारी चीजें एंटर कर दी। नाउ क्लिक ऑन ओके बटन। अब हमें ओके बटन पे क्लिक कर देना है। द मैसेज विल बी विजिबल ओवर सेल F6। जो मैसेज है वो सेल F6 के ऊपर दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं ये एरर मैसेज आने लगा। इफ यू एंटर वैल्यूज अदर देन फ्रॉम 10 to 20, 10 या 20 के अलग, अगर इन दोनों से अलग हम कोई वैल्यू डालते हैं तो ये एरर मैसेज आने लगेगा जो आपके सामने आ रहा है। सो ये है हमारा डेटा वैलिडेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गोल सीक। So goal seek is
a feature that helps you in finding the correct input value when only the output is known. So ये क्या करता है हमें सही इनपुट वैल्यू फाइंड करने में जब हमें क्या पता हो, सिर्फ आउटपुट पता हो. The process involves using a specific operator. ये जो प्रोसेस है इसमें आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑपरेटर मिलता है इन अ फॉर्मूला में which can be calculated using computer software, जिसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं. It is one of the tools used in what if analysis. ये एक टूल है जो what if analysis में यूज किया जाता है to find the correct input value, ताकि जो सही input value है वो मिल सके. Now let's see what are the steps to be followed using GoalSeek. तो हमें सबसे पहले जाना है डेटा टैब में एंड यहाँ पे हमें जाके क्लिक करना है व्हाट इफ एनालिसिस पे, जो कि हमें फोरकास्ट ग्रुप में मिलेगा. फिर यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है GoalSeek को. आप देख सकते हैं दिस इज आवर GoalSeek. देयर आर 3 पैरामीटर्स दैट आर अवेलेबल इन GoalSeek डायलॉग बॉक्स. तो GoalSeek डायलॉग बॉक्स में आपको 3 पैरामीटर्स मिलेंगे. सेट सेल, टू वैल्यू, बाय चेंजिंग सेल. तो क्या है ये तीनों, लेट्स सी. सो पहला है हमारा सेट सेल. ये क्या करता है, एंटर करता है सेल विथ अ फॉर्मूला. तो इसमें एक फॉर्मूला हम डाल सकते हैं. दिस इज द टारगेट सेल और द फॉर्मूला सेल. ये एक टारगेट सेल है या फिर फॉर्मूला सेल है. एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई B2 इन सेल B3. नाउ अब हम आते हैं वैल्यू पे. टू वैल्यू में क्या होगा, एंटर द डिजायर्ड आउटपुट टू बी अचीव्ड. जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे एंटर करना है. दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेट सेल टू बी अटेन्ड. एग्जाम्पल 2000 माइनस 2000 हमें जो है वैल्यू चाहिए यहाँ पे. नाउ बाय चेंजिंग सेल इन दिस बॉक्स एंटर द रेफरेंस ऑफ द इनपुट सेल. अब इस बॉक्स में हमें क्या करना है, जो भी हमारा रेफरेंस है इनपुट सेल का वो हमें यहाँ पे एंटर करना है, जो कि एक वेरिएबल भी हो सकता है टू बी एडजस्टेड, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं. दिस इज द सेल वी वांट टू चेंज इन ऑर्डर टू इम्पैक्ट द सेट सेल. ये क्या हो सकता है, ये एक जो है ऑर्डर हो सकता है जिसमें हम अपने सेल को चेंज करना चाहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है B1 फॉर प्राइस. B1 हमें प्राइस को देना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल to understand it better. Here you have to consider the following data set. यहाँ पे डेटा सेट दिया गया है जहाँ पे प्राइस जो है वो B1 में लिखा हुआ है एंड क्वांटिटी लिखी है B2 में एंड अमाउंट जो है B3 में लिखा हुआ है. सो B1 में आप देख सकते हैं प्राइस है, क्वांटिटी है B2 में और जो अमाउंट है वो पूरा आया है B3 में. Now if we want to change amount to be rupees 2000, अगर हम चाहते हैं कि ये जो अमाउंट है वो 2000 हो जाए, there are two options. दो ऑप्शंस हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं. पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो हम चेंज कर सकते हैं प्राइस या फिर हम चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी. प्राइस को बदल दें तो भी ये चेंज हो जाएगा और क्वांटिटी को बदलेंगे तो भी चेंज हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे, हियर वी आर गोइंग टू चेंज प्राइस. हम यहाँ पे प्राइस को बदलेंगे सो दैट आउटपुट टारगेट वैल्यू इज अचीव, ताकि जो आउटपुट टारगेट वैल्यू है वो अचीव हो जाए. तो ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें हमें फॉलो करना है. पहले हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है B3 को. तो हमने क्या किया, B3 को सिलेक्ट कर दिया. नाउ अब हमें जाना है डेटा टैब में, क्लिक करना है व्हाट इफ एनालिसिस पे एंड क्लिक करना है वहां पे जाके GoalSeek में. अब यहाँ पे जैसे हम GoalSeek में जाएंगे तो क्या होगा, इन द अपीयर डायलॉग बॉक्स एंटर 2000 इन टू वैल्यू. टू वैल्यू जो बॉक्स है उसमें हमें 2000 लिखना है और सिलेक्ट करना है B1 सेल. B1 सेल को सिलेक्ट कर देना है बाय चेंजिंग सेल बॉक्स. तो अब हमने जो है इसे जो है सिलेक्ट कर लिया. जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं. नाउ इसके बाद क्या होगा, इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइस. जो भी वैल्यू है हमारे प्राइस की उसे चेंज कर देगा सो दैट डिजायर्ड रिजल्ट कैन बी अचीव्ड, ताकि जो भी रिजल्ट है वो हमें मिल पाए. तो आप देख सकते हैं 50 से यहाँ पे 100 हो गया और हमारा अमाउंट हो गया 2000. सो दिस वाज GoalSeek. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू
reboot. So Excel is a spreadsheet software which is used to work with numbers, text and formulas. It is used to generate reports easily. Sorting is a tool used to arrange data either in ascending or descending order. Sorting एक tool है जो data को ascending या फिर descending order में arrange करता है. Sort and filter option is available under home tab. ये दोनों home tab में मिलेंगे हमें. Filtering is used to display data based on conditions. Filtering जो है use किया जाता है data को display करने के लिए conditions के according. Conditional formatting allows you to automatically apply formatting to cells based on certain conditions or criteria. That data validation is used to restrict the type of data or the values that can be entered in the cell. Goal seek is a feature that helps you in finding the correct input value when only the output is known. It is one of the tools used in what if analysis. So these are the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's go. So here A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? Fill in the blanks करना है. So here the first one is goal seek is one of the tools used in what if analysis. Second, conditional formatting option is available under home tab. Third, sort and filter option is available under editing group in Excel. Fourth one, data validation option is used to restrict type of data that can be entered in the cell. Fifth one, conditional formatting allows us to apply formatting on cells based on specific conditions. Sixth one, filter is used to display data meeting certain conditions. Next, seventh one, in ascending order, numbers are arranged from lowest to highest. Eighth, sorting is used to arrange data in ascending or descending order. And the ninth one is custom sorting allows you to sort data based on preferences. So these are the answers to fill in the blanks. Now let's quickly move on to the next exercise, which is B exercise, write true or false. First one is there is a way to restrict data that can be entered in the cell. Yes, true. Second, we can change the appearance of cells based on certain conditions. Yes, true. Third one, sort and filter group is available under home tab. True again. Fourth one, we can use custom sort option to sort the data based on our preferences. True again. Fifth one, alphabets are arranged from Z to A in ascending order. This one is false. And the sixth one is for goal seeking, we use what if analysis feature. So this is true. Now let's move on to C part, which is take the right answer. Here the first one is dash is the process of arranging data in an order. Sorting, merging, filtering or none of the above. Correct answer is sorting. Second one, there are dash types of sorting in Excel. 2, 3, 8, 1. Correct answer is 2. Third one, sort and filter option is available under dash tab. View, insert, tables, home. Correct answer is home. Fourth question is which tool helps in what if analysis? Here the options are sorting, goal seek, formatting, validation. Correct answer is goal seek. Fifth one is dash is used to display data based on conditions. Sorting, formatting, filtering or analysis. Here the correct answer is filtering. Now let's quickly move on to the next exercise, which is match the following. There are two columns here in front of you, column A and column B. We have to match them. So first comes sorting. Sorting is arranging data in ascending or descending. Goal seek is
what if analysis. Data validation is restricting type of data. Formatting is put certain conditions. Custom sorting is sorting on preferences, and filter is arranging on criteria. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.